धरती पर अगर स्वर्ग देखना है तो कश्मीर से बेहतर जगह दुनिया में दूसरी नहीं। This is my first visit to Jammu after taking over as general manager about a month back, and this was primarily to familiarize myself with this national project, which is of great importance, and it is monitored at the highest level of the government. I have just had a meeting with the Chief Secretary of Jammu and Kashmir along with his officers, primarily to discuss the issues that are important for this project. And we have had a very productive meeting, and in all the items that we discussed, we have reached an understanding as to how to go forward. And I am sure that with the support and cooperation that we are receiving from the government of Jammu and Kashmir, we would be able to achieve the timelines that we have set out for ourselves. You have just seen a small documentary that has been prepared for the project, which listed out the various stages and the milestones that we have set for ourselves. You see, the project was conceptualized to be completed in 4 stages. The easier portions have been completed. The most difficult portion of Katra to Banihal remains to be completed. This length is 111 kilometers, and of which 97 kilometers is in tunnel. In keeping with the norms, about 65 kilometers of escape tunnels are also required to be made. So this is the most difficult section which we are working on, and we hope to complete it. We are planning to complete it by end of 2022. As far as the train services are concerned, the portions that have been completed so far are already in use for train services. The train services on Baramulla to Kazigund have been running for quite some time. In the south side also up to Katra, the train connectivity has been provided a long time back, and we have number of trains that are starting from Katra. So this is in brief about the project. The cost of the project is about 28,000 crores. And we have already incurred an expenditure in excess of 15,000 crores so far. We are trying to monitor the project on a monthly basis and are solving the issues that arise from time to time. There are 2 PSUs of the railways that are working on this project. One is Konkan Railway, whose CMD is also with us today. The other is IRCON. Both of them have been allocated portions, stretches on which they are working. The project is progressing at a pace at which we wanted it to progress. So things are working on schedule, and we will complete it as per the schedule that I've already released. जिसके लिए उत्तर रेलवे, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर काम कर रही है, जो कि विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग का नमूना है। 27,949 करोड़ की लागत के इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट भी घोषित किया जा चुका है, जिसके पूर्ण होने का अनुमानित लक्ष्य 2022 में रखा गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और 1 महीना पहले ही कार्यभार संभाला था जीएम नॉर्दर्न रेलवे ने। सर हमारे साथ हैं। सर आपने कार्यभार संभाला है, ये बहुत बड़ा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिस तरह से काम की गति चल रही है, आपको क्या लगता है 2022 तक ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा या आगे बढ़ सकता है? देखिए, हमारी चेष्टा यही है। आपको मालूम ही है, इस साल 2 बड़ी चैलेंजेस हमारे सामने रही हैं। एक तो कोविड, और उसके बाद 2 महीने तक ये ट्रेन्स बंद थी, तो उससे सीमेंट लाने में हमें बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन अभी सीमेंट हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा भंडारण भी बढ़ा दिया है, जिससे इनके पास सीमेंट उपलब्ध हो, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए कोविड का जो असर था वो भी आया था, लेकिन कोशिश यही करी जाती है बड़े प्रोजेक्ट्स में कि आप कुछ लॉसेस आप एब्जॉर्ब कर सकें, तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसकी मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी है। पहले मंथली मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे, अब हर महीने मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बहुत उच्च स्तर पे मॉनिटरिंग हो रही है, और कोशिश यही है कि हम लोग अचीव कर सकें, और जो टारगेट्स हम लोगों ने अपने लिए रखा है दिसंबर 22 का, वो हम अचीव कर सकें। बहुत सारे, जैसे अंजी ब्रिज है या फिर चनाब ब्रिज की बात करें तो साफ तौर पे वो तो एक वर्ल्ड क्लास लेवल के बन ही रहे हैं, लेकिन पूरा टेररिज्म ये पॉन एरिया है, तो
सुरक्षा के माध्यम से किस तरह से वहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ट्रेन चलेंगी रेगुलर और लोग भी आ जाए करेंगे, तो उसको लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, इस बारे में मेरे लिए कमेंट करना कुछ संभव नहीं है। सुरक्षा, राज्य सरकार से हम लोग निरंतर संपर्क में रहते हैं और वो हम लोगों को सुरक्षा जो जीआरपी देखती है सुरक्षा, तो जीआरपी का जो भी आकलन होगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेन चलाते रहते हैं। और सर, एस्टिमेट कॉस्ट इसका जब निर्धारण शुरू हुआ था उसके बाद अभी तक कितनी बढ़ोतरी देखा जा रहा है और बढ़ सकता है इसका जो एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट है? देखिए, इसकी अनुमानित लागत 28,000 करोड़ के आसपास है और हमें उम्मीद है कि हम इसे समय से पूरा कर लेंगे, तो टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन नहीं होगा। तो ये जीएम नॉर्दर्न रेलवे हमारे से बात कर रहे थे और साफ तौर पे जिस तरह से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है वो 2022 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, इसको अनुमान साफ तौर पे लगाया जा रहा है और ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा फोकस किया हुआ है इस प्रोजेक्ट पर और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तर्ज पर ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। अब ये अभी का जो आज का जो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बेसिकली इसीलिए था कि बताया जाए कि अभी तक कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। रेलवे ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है, आगे जो है जीएम तमाम साइट्स को विजिट करके काम का जायजा लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स, जम्मू।